सर बहुत लोग लोग वेटिंग रूम में हैं। हेलो। वेटिंग में है सब। यस सर, बहुत लोग हैं वेटिंग में। बट यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा, सब तो ज्वाइन कर रहे हैं। सर रोशन रोशन बोल रहा है कि वो सर आप इन नहीं कर रहे हो बोल के बोल रहा है, वो वेटिंग नहीं में नहीं, है। ऐसा तो नहीं है, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपने आप लॉग इन हो रहा है। ओके सर, एक मिनट मैं उसको बता देता प्लीज मार्क योर अटेंडेंस फास्ट। सर लिंक अभी एक्टिव नहीं है। Link is not active, sir. सर आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो सर। आ रही है अब? हेलो। हाँ सर, अब आ रहा है सर। हाँ So in the last class, what we have discussed about the full wave rectifier. Okay, in that we have two types. One was center tap. Okay, and second one is full bridge. Okay, bridge rectifier we can say. So in the last class, what we have seen? Huh? Center tapped one. Okay. So if you remind yourself, we have a transformer. Okay, and we have two diodes connected like that. In the center of the secondary binding, we have the tapping, and across this we are taking the output. This is RL, this is D1, and this was D2. Okay, and the primary side we are applying the AC signal. Okay, so if you have input like this, we can have the output in each cycle, for each cycle. Okay,
like that. So first this D1 will conduct and then D2, then again D1. Okay, like that we will get the output signal. Okay, yeah, output voltage or output current, whatever you can call it. Okay, तो यहाँ तक कोई डाउट था किसी को भी? No, sir. ओके, so now we'll see the bridge rectifier. इसमें डिसएडवांटेज क्या है बाबू? इसका डिसएडवांटेज ये है, ये जो सेंटर टैप का जो हमको ट्रांसफार्मर चाहिए होगा इसको बिल्डअप करने के लिए, ओके, ये नॉर्मली ये वाला कंस्ट्रक्शन आप नहीं बना सकते। ओके, अगर आपके पास सेंटर टैप का ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा, यू कांट बिल्ड इट। ओके, so now this is having the some cost, नॉर्मल रेक्टिफायर से इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है और कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो विल मूव टू सर्किट कॉल एज ब्रिज रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे? ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, so we'll see the bridge rectifier now. So bridge rectifier, bridge rectifier. Okay, so circuit will look like this. Okay, we have one diode like that. Just bridge पता है ना, आप पढ़े होगे 10th और 12th में, है ना? मेजरिंग के लिए जनरली यूज करते थे। ओके, क्या मेजरिंग के लिए? कैपेसिटर या इंडक्टर या बोलो सॉरी, देखो क्या ऑप्शन हो जाता है? कैसे बंद हो गई? So I think it will come like this. Have one another diode. I'm going to connect like this. Circuit is not सर meant. आवाज कट के आ रहा अभी नेटवर्क का थोड़ा है। तो अभी इशू, ठीक है सर। बारिश का मौसम है बाबू इधर, ठीक है? अभी ठीक है? यस सर। Okay, I'll try to make another circuit because not looking good. So what we have a one diode, okay, like that, and then we have another diode, okay, then we have this kind of bridge type construction। okay, हम लोग 12th में पढ़े होंगे, जो बच्चे पढ़े 12th में उनको ये पता होगा ये सर्किट। ओके, आई एम एज्यूमिंग कि आप पढ़े होंगे।
from where it's coming. Okay. Okay. That we have one down. सर आपका आवाज बोलो। सर बीच में सही से आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है? यस सर। We are giving the input from this and we are taking the output from this point. Okay, so we are naming it, ये D4 डायोड है. Okay, ये D1 डायोड है, ये D2 डायोड है और ये D3. Okay, and we are taking the output from this. Okay, this terminal से हम output ले रहे हैं. This is called RL. आप ये बाहर भी बना सकते हो like this. Okay, ये तो आप अंदर बना दिए ना, आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि ये 2 पॉइंट के बीच का बात है ना. ओके, तो आप ऐसे भी बना सकते हो. ओके, so this is what a bridge rectifier. क्या बोलेंगे? ये D3 bridge rectifier. Now let us understand the working principle of this. So how this is going to work? So first of all, आपको एनालिसिस करने के लिए बताया है. If this is input, suppose है ना, this is input, so what will happen? You have to identify which diode is in forward bias and which is in the reverse bias. Okay, so for first positive half cycle, and this, okay, which diode is in forward bias and which one is in reverse bias? Tell me. This is positive for first half. For first half, this is positive, and this terminal is going to be negative. Okay, for positive half cycle. यहीं से ना इनपुट दे रहे हैं ऐसा वाला. So for first half cycle, this terminal is positive and this is negative. Now tell me which diode is in forward bias. D1 and D2 sir. D1 D2. D1 and D2 forward. right. Okay, how? See, this is positive terminal of the diode, है ना, and this is negative terminal of the diode. तो ये diode तो reverse bias होगा, है ना, क्योंकि ये positive terminal of your supply is connected to the positive terminal of your diode. So this is in forward bias. ये forward bias होगा तो करंट कैसे कंडक्ट करेगा? यहाँ तक जाएगा, है ना. यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट होना स्टार्ट होगा. अभी क्या है, ये रिवर्स बायस में है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है. फिर क्या होगा? करंट फिर ऐसे लोड से होते हुए यहाँ तक आ जाएगा, है ना. तो ये क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या था? नेगेटिव. तो ये भी कंडक्ट करेगा और ऐसे इससे रिटर्न. Got the point? So this will be the path of the current. So in forward or in first half cycle of your supply, positive half cycle of your supply will make you conduct D1 and D2. Okay, and current is follow this path like this. Okay, कोई भी सर्किट में अगर आप नॉर्मली सर्किट देखो जहाँ पे ऐसे सप्लाई है, ऐसा लोड है, तो क्या होगा? ये सिंपल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ. कोई भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए सर्किट को क्लोज होना चाहिए. कहीं से भी ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा. ओके, तो अभी यहाँ से करंट जाएगा, इसके थ्रू गया, फिर लोड, अगेन रिटर्न टू द सप्लाई.
बैक। ओके, तो एक क्लोज सर्किट है, ऐसे ऐसे फ्लो करते रहेगा कंटिन्यूस। ओके, इफ यू सी दिस, अपने फुल वेव रेक्टिफायर को देखो केयरफुली। ओके, अभी कलर चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल बोलो। थोड़ा हिट कर लेते बोलो बाबू, बोलते जाओ आप लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर वही D3 D4। कैसे कंडक्ट करेगा बताओ। सर D3 से होते हुए इधर फिर लोड, और फिर इधर से होते हुए सर D4 से निकलेगा। D3 के बाद लोड, लोड के बाद सर ये इस पॉइंट पे फिर D4, और D4 से वापस सर AC तरफ वाला। Okay, so now if we consider the negative half supply, then what will happen? This is, this terminal is going to be negative and this terminal is going to be positive, है ना? यहाँ से सप्लाई है। ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया और ऊपर वाला नेगेटिव हो जाए फॉर दिस, है ना? यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं ये वाला पोर्शन। तो अभी क्या है देखो, ये वाला डायोड से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया, मतलब डायोड का पॉजिटिव ये है और वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये डायोड तो रिवर्स बायस में हो गया, ये नेगेटिव से कनेक्ट है ना? ओके, और दूसरा इस साइड देखोगे, पॉजिटिव वाले को देखोगे तो ये डायोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव D3 का, और इसका D2 का उल्टा है, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया। तो यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट होगा लाइक दिस, है ना? ओके, ये पाथ फॉलो होगा। गॉट द पॉइंट? So in negative half direction, your D4 and D3 in forward bias and D2 and D1 is in reverse bias. So current will take the path from D3 going to the load again to the D4, right? Clear? So for if you draw the output, like that, you draw the output, what will have? For first, this is the input, okay, and this what we are drawing is output. So for first half cycle, which diode is going to be conduct? For what we will get the output? D1 and D2, right? For negative half cycle, what we'll get? D4 and D3. Again, पॉजिटिव के लिए D1 D2 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव के लिए D4 and D3 कंडक्ट करेगा। ओके, दिस इज द आउटपुट ऑफ योर ब्रिज रेक्टिफायर। किसी को डाउट है अब इसमें? बोलो बाबू। नो सर। सर लोड में दोनों ही केसेस में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा ना? सर आरएल लोड में दोनों ही केसेस में सर एक ही डायरेक्शन में ना फ्लो करेगा करंट? हाँ ऑब्वियसली। यस। ओके,
Got the point? Yes, sir. अभी एक चीज देखो, एक टर्मिनोलॉजी है फ्रीक्वेंसी का. If input frequency is suppose f, okay, then output frequency या frequency of your output कितना होगा for half wave and for full wave? Tell me. बोलो. अगर सपोज इनपुट फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा फॉर हाफ वेव एंड फॉर फुल वेव? बोलो बाबू. सर 15 ही हर्ट्ज होगा, बस एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाएगा. See, if you look at the graph, आपको आंसर मिलेगा ना. सर ना? फुल वेव में डबल हो जाएगा सर. हाँ, ये हाफ ये सपोज इनपुट है, ओके, हाफ वेव का ड्रॉ करो, ओके, ये हाफ वेव का था, फुल वेव का ड्रॉ करो. ओके, नॉट कमिंग. Sir, which pen tablet you are using, sir? This is not actually this is Samsung का टैबलेट है. Okay, sir. टैबलेट नहीं, बट समथिंग ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को. कुछ कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है. चलो कोई नहीं. सी, you if you have a full wave, don't know what is, suppose ये full wave मान लो, or let us take this one only. ठीक, तो ये portion काम ही नहीं. Okay, so this is the full wave rectifier waveform. Okay, so if we see, if we have 50 hertz, if we have 50 hertz, okay, in the input, if we see carefully in the half wave rectification, we are getting only आउटपुट क्या होगा? सर हाफ हो जाएगा सर. हाफ नहीं होगा, हाफ हो जाएगा सर 1/4 होगा सर. 1/4. only f होगा ना. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? रिपीटेशन ऑफ योर वेवफॉर्म इन 1 सेकेंड, राइट? तो अगर आप देखोगे इसका रिपीटेशन जो इनपुट का है
ऐसा है रिपीटेशन, हाफ वेव का रिपीटेशन कैसा है, ऐसा और ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा, ये एक साइकिल हुआ, आगे जाके ऐसा साइकिल। तो जो इनपुट में है वही आउटपुट में है। गॉट द पॉइंट? यस सर। अपने आप को वेव रिपीट कब से कर रहा है? रिपीटेशन का मतलब देखो, ये ऐसा है, फिर ये 0 हुआ, यहां तक वो रिपीट नहीं किया अपने आप को, यहां से फिर रिपीट कर रहा है, हाई होगा फिर 0 होगा। ओके, समझ रहे हो? आपका इनपुट में रिपीट कैसे कर रहा था? पॉजिटिव गया, फिर नेगेटिव गया, अगेन इट्स कमिंग पॉजिटिव, तो दिस इज फर्स्ट वन साइकिल। ओके, इसी तरह से हाफ वेव में इसका वन साइकिल ये हुआ, इसका दूसरा साइकिल ये हुआ। तो अगर ये एफ है, तो इनपुट अगर एफ है तो आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, एफ। यस सर। अगर इनपुट 50 हर्ट्ज है तो फॉर हाफ वेव योर आउटपुट इज आल्सो 50 हर्ट्ज। ओके, बट इफ वी सी यस सर। द फुल वेव रेक्टिफिकेशन, इसका रिपीटेशन कहां से हो, इसका एक साइकिल में 2 बार रिपीटेशन होगा, यहाँ और फिर से फिर से फिर से फिर से, है ना, अपने आप को रिपीट कर लेगा। तो ये अगर इनपुट का साइकिल था, तो आप इनपुट को रेफरेंस में देखो, ये एक बार हो रहा था, अपने आप को रिपीट सिर्फ ये एक भी बार नहीं किया है, यहाँ से इसका रिपीटेशन हो, ठीक। और ये इतने देर में अपने आप को रिपीट कर चुका 2 बार, ये एक, है ना, मतलब 2 साइकिल हो गया यहाँ पे, इसका 2 साइकिल और इसका इनपुट का 1 ही साइकिल हो। ओके, तो फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट वी हैव, कितना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, डबल डबल हो डबल हो जाएगा, जाएगा सर। 2f। ओके, कोई डाउट है बाबू? नो सर। और इसमें एक टर्म होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या? पीक इनवर्स वोल्टेज, ये क्या होता है? बोलो, कौन बोलेगा? पीक इनवर्स वोल्टेज, बोलो बाबू। पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ए डायोड, है ना, और अदर डिवाइसेस, डायोड नहीं, कोई भी डिवाइसेस जो आपका सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, other than means diode also can be considered, but right now we are talking about the diode. So peak inverse voltage is a maximum voltage that a device can withstand in the reverse direction, okay, before the breakdown. Okay, this is also called as a reverse breakdown voltage. Okay, मतलब कहने का मतलब है ये मैक्सिमम वोल्टेज है जब तक कि आपका डायोड जल न जाए इन रिवर्स डायरेक्शन, उसके पहले वाली वोल्टेज। ये हम रेटिंग हमेशा डिवाइस में लिखते हैं बनाने के बाद। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप डायोड खरीद के ला रहे हो, कभी कभी देखे हो पोलरिटी गलत जोड़ देने से जल जाता यस सर। है ना, मान लो पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव दे दिया, मतलब क्या किया आपने, उसको रिवर्स बायस कर दिया। तो रिवर्स बायस में आप कितना मैक्सिमम दे सकते हो वोल्टेज, वो लिमिटेशन है, आप उससे ज्यादा दोगे जल जाएगा, है ना। तो पीक इनवर्स वोल्टेज is the maximum voltage in reverse direction, है ना, that can withstand during, मतलब withstand the voltage, है ना। ओके,
समझ में आ गया? PIV क्या है? पीक इनवर्स वोल्टेज। ओके, यस सर। क्लियर है? किसी को डाउट है इस पे? सर PIV नॉर्मल लोड के लिए भी हो सकता है क्या सर? हाँ, PIV जैसे मतलब क्या है? बल्ब का आपका ये डायोड है, देखो आपका ये डायोड है, ठीक। तो जब आप इसको AC दे रहे हो ना बाबू, तो इसके सामने तो दो कंडीशन आ रहा है ना, ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है एक समय में, और अपने आप ये रिवर्स बायस भी हो रहा है ना? क्योंकि ये वाला जब आएगा इसके सामने तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा ना उस समय। तो रिवर्स बायस में भी इसके पास जो वोल्टेज आ रहा है, ये कितना तक आप दे सकते हो, उसके बाद तो जल जाएगा। That is why this PIV is very very important when we are making a rectifier circuit. तो आप सर वैसा बोलो। सर ये डायोड आइडियल नहीं ना लेंगे, क्योंकि आइडियल लेंगे तो सर रिवर्स बैस में तो फिर ये ओपन सर्किट जैसे वर्क करेगा। नहीं नहीं, आइडियल नहीं है, ओपन जैसा तो वर्क करना ही है इसको, ठीक है ना? यस वो तो करेगा ही, कंडक्शन नहीं होगा तो करेगा। बट आपने सपोज ये डायोड है, ठीक है, और आप इसको 30 वोल्ट रिवर्स बायस दे दी, ठीक है, 30 वोल्ट, तो क्या होगा? जल जाएगा। अगर ये डिजाइंड है 5 और 10 वोल्ट ऑपरेशन के लिए, तो ये जल जाएगा ना, यस सर। बर्न हो जाएगा, फिर और काम ही नहीं करेगा आपका। तो ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रिवर्स बायस यू कैन से, एट विच योर डायोड कैन सस्टेन। ओके, तो जब आप उसको रेक्टिफायर बना रहे हो तो आप AC दे रहे हो ना, तो AC Yes, का sir. नेचर क्या Yes, है? ये पॉजिटिव होगा फिर निगेटिव भी हो जाए, फिर पॉजिटिव होगा फिर निगेटिव भी हो जाए। नेगेटिवली जब रहेगा। पॉजिटिव जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके सामने निगेटिव वाला कंडीशन भी आ रहा है ना, आपका डायोड रिवर्स बायस भी हो रहा है, वो रिवर्स बायस भी एक्सपीरियंस कर रहा है। उस समय पे वो कंडक्शन नहीं कर रहा है, बट इसके सामने एक रिवर्स बायस का वोल्टेज अप्लाई आ रहा है, मतलब ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर रेटिंग से ज्यादा आ गया तो ये जल जाएगा, है ना? फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर आप जब डिजाइन कर रहे हो, तो आपका डायोड पॉजिटिव भी एक्सपीरियंस कर रहा है और निगेटिव भी एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो तो फुल वे में तो दो पैरेलल में लेते हैं ना। हाँ, फुल वेव में लेते हैं तो एक समय में एक पॉजिटिव, एक फॉरवर्ड बायस में रहता है, एक रिवर्स बायस में रहता है ना। यस सर, यस सर, यस सर, समझ रहा हूँ, समझ। ये कोई एक फॉरवर्ड बायस में रहेगा, कोई एक रिवर्स बायस में रहेगा, है ना? तो जब ये फॉरवर्ड बायस है, उसी समय ये रिवर्स बायस है। सपोज फॉरवर्ड बायस 10 वोल्ट है मान लेते हैं एक समय, तो एट द सेम टाइम ये रिवर्स बायस एक्सपीरियंस कर रहा है -10 वोल्ट, जब आप AC सप्लाई दे देते हो, यस राइट? सर। तो वो जिसको -10 वोल्ट वो तो ओपन हो जाएगा, फिर उसके कारण से करंट फ्लो होगा ना। हाँ, तो ओपन वो तो हो जाएगा, लेकिन इस डायोड सेकेंड। को ओपन कहने का मतलब ये कंडक्शन नहीं कर रहा है, हाँ, यस, जैसे बट इसके थ्रू इसके कोई करंट सामने नहीं। तो 10 वोल्ट आया ना, यस सर। इनवर्स डायरेक्शन। तो वो कितना तक ये सह सकता है, दैट इज PIV, पिक इनवर्स वोल्टेज। इनवर्स में कितना हम पिक दे सकते हैं, पिक कितना तक दे सकते, गॉट द पॉइंट? अब मेरे को बताओ कि हाफ वेव में और फुल वेव में कितना पिक इनवर्स वोल्टेज हो, मेरे को बता। सपोज इनपुट ये जो मैक्सिमम है वो VM है, सर हाफ वे में 0 सर। 0 होगा। यस सर। अरे क्या बाबू, पूछे एक बार फिर? मेरे को बताओ कि पिक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ये डायोड, है ना,
हाफ वेव में और फुल वेव में कितना होगा? अगर इनपुट, ये इनपुट है, सपोज ये वाला इनपुट है और उसका पीक वोल्टेज है Vm, ठीक है ना? सर VME होना चाहिए। Vm होगा। यस सर। फॉर हाफ वेव तो Vm होगा और फुल वेव सर हाफ वेव में 0, फुल वेव में भी। सर 0 कैसे होगा बाबू? देखो तुम लगता है समझे नहीं, अभी देखो। ये सपोज तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है? एसी दे दी, लोड है, ये आपका डीजल। तो ये जो आप एसी दे रहे हो, सपोज ये इनपुट, ठीक, और ये Vm है, मैक्सिमम उसका जो वोल्टेज है वो Vm। बार बार ये डिलीट हो जाए, ओके, ये Vm है। अब मेरे को ये बताओ देख के कि ये जब फॉरवर्ड बायस है तो ये डायोड के पास मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है? पीक वोल्टेज जब ये फॉरवर्ड बायस है तो मतलब ये वाला जब आ रहा है Vm Vm। गुड। जब रिवर्स बायस होगा तो कितना आएगा? -Vm। मतलब मैक्सिमम Vm ही आएगा ना? हाँ, वो डायरेक्शन माइनस में रहेगा बट Vm आएगा। जब मतलब यस सर। मैक्सिमम एक्सपीरियंस से कितना करेगा? Vm। तो इसका रेटिंग पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होना चाहिए कम से कम? भी इन ही सर। इक्वल्स टू Vm, यस सर। नहीं तो जल जाएगा, है ना? अगर आप Vm से कम इसका पीक इनवर्स वोल्टेज रखोगे, डिजाइन के समय बनाओगे, तो ये Vm तो एक्सपीरियंस करेगा ही। मान लिया आपने Vm से कम रख दिया, सपोज Vm 5 वोल्ट मान लेते हैं, ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है था 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव में और 5 वोल्ट एक्सपीरियंस करेगा निगेटिव, है ना? लेकिन आपने PIV डिजाइनिंग के समय 3 वोल्ट कर दिया या 3 वोल्ट वाला डायोड आपने यूज कर लिया यहाँ रेक्टिफायर बनाते समय, तो क्या होगा? 5 वोल्ट तो सर जल जाएगा रिवर्स जाएगा। तो PIV कितना होना चाहिए फॉर हाफ वेव? इक्वल्स टू सर 5 ही वोल्ट